Assalamu alaikum to everyone. This is Miss Nusrat from Amity Higher Secondary School, Sopur. Today I am going to deliver my lecture on more on MS Windows 7 for class 7th. Dear students, in this chapter our main topic is Windows Explorer. But before starting this, I will throw some light on Windows 7. Now, what is Windows 7? It is the most effective operating system for general purpose computers. It used both for personal and business purpose. Windows 7 provides us with a graphical user interface, or we can simply say GUI, which means it uses pictures or buttons for performing different operations. So, by using Windows 7, we do not have to remember all the commands like in command line interface. Before GUI, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो कमांड लाइन थे. मीन्स जो भी हमें ऑपरेशंस करने पड़ते थे हमें कमांड्स इशू करनी पड़ती थी. एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स. बट दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आफ्टर दैट जब GUI आया, इससे क्या हुआ? वी हैव आइकन्स, हमारे पास बटन्स हैं, मेन्यू बार है, टास्क बार है. वी सिंपली हैव टू क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. सो हमारा जो ये टास्क है GUI की वजह से इजी बन गया. नाउ कमिंग टू द मेन थीम ऑफ टुडेज लेक्चर, आई हैव टू डिस्कस अबाउट दैट्स विंडोज एक्सप्लोरर, which is now referred to as File Explorer. Windows Explorer है क्या? It's a file manager application that's included with release of Microsoft Windows operating system from Windows 95 onwards. It provides this graphical user interface for accessing the file system, and जो ये File Explorer है या Window Explorer है, it's suitable for viewing files and folders in a hierarchical order. आप देखिए, इसमें जो भी हमारे पास फाइल सिस्टम है उनको हम अरेंज कर सकते हैं into some specific order. We can organize these files and folders in this Windows Explorer. So, to open Windows Explorer, we have to perform some steps. Firstly, click on Start button, then All Programs. After that, Accessories, and here you will see Windows Explorer option. Click on that and you will see Windows Explorer displays. ये हमारे पास एक तरीका है विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने का, बट आप एक दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको क्या करना है? सिंपली यू कैन डू वन थिंग. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आइकन ऑफ विंडो एक्सप्लोरर हियर एंड विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन डिस्प्लेज. अब आपके सामने जो ये स्क्रीन है दैट्स विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन. नाउ यू सी that it's divided vertically into two parts or pans. First one from left side, that's known as left pan, and another one from the right side. हमारे पास जो है आता है हिस्सा उसको हम right pan कहते हैं. जो left pan है it displays the disk drives and folders in a hierarchical order. मीन्स जितने भी डिस्क ड्राइव्स आपके इस सिस्टम में है वो डिस्प्ले होते हैं, एंड कुछ लाइब्रेरीज हैं या वी कैन से फोल्डर्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं लेफ्ट पैन में. एंड आफ्टर दैट इफ यू क्लिक एनी डिस्क ड्राइव और एनी फोल्डर ऑन द लेफ्ट पैन, उसके कंटेंट्स डिस्प्ले होते हैं ऑन द राइट पैन. देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ऑन द सी ड्राइव. आफ्टर दैट जब हम क्लिक कर रहे हैं इसमें जो भी कंटेंट्स है, जो भी इसमें फाइल्स है वो हमारे राइट पैन में डिस्प्ले हो रहे हैं. एंड नाउ हमारे पास और एक पैन है दैट्स नोन एज डिटेल्स पैन. आप किसी भी फाइल या फोल्डर या डिस्क ड्राइव किसी पर क्लिक करते हैं यू विल गेट इट्स डिटेल्स इन द डिटेल्स पैन लाइक टाइप, साइज.
Now, remember one thing here. There's one more option, that is back and forward button of Windows Explorer. ऊपर देख सकते हैं आप, to go back or forward. Now we will organize some files and folders in Windows Explorer. We'll perform some operations like we will create a file or folder, we will rename it, we will save it, we'll move some files here and there, we will copy something. So let's see one by one. Firstly, we will create a new folder here in Windows Explorer. For this, you have to do some steps. So for creating a new folder, we have to select a new folder option from the menu control bar. इस पर क्लिक करना है. When you will click this, यहाँ पर एक folder create हो जाएगा. Now type a suitable name. जो भी आपको इसका नाम रखना है, आप वो नाम लिख सकते हो. You will type that and hit enter. So एक folder जो है वो यहाँ पर create हो गया. Like we will create another folder here with the same steps. Just I'm doing here. Now we will see the another folder. Clear? Good. Now how to rename these folders? And same steps apply for this. Rename क्या है? Means कोई नाम change करना है. अपना नाम जो आपने रखा है इसका फोल्डर का वो गलत हो गया, मे बी आपका नाम जो है वो गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो, या ऐसे ही आप किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो, रिनेम करना चाहते हो, उसको रिनेमिंग कहते हैं. सो टू रिनेम एनी फाइल और फोल्डर, आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है वो फोल्डर जिसको आप रिनेम करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था, आप वो फोल्डर सिलेक्ट करें. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाइए, ऊपर जो मेन्यू कंट्रोल बार में है, पहला ही ऑप्शन आता है. सो क्लिक ऑन दिस ऑर्गेनाइज मेन्यू. वहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा वो ओपन हो जाएगा. वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिनेम. सो क्लिक ऑन दैट. You see, जो नाम हमने दिया था वहां पे वो सिलेक्ट हो गया. Now type another new name. Just I am doing here. Hit enter. आपका जो फोल्डर है ये रिनेम हो गया. Okay? Just I am writing here MET school. तो आपका जो ये फोल्डर है क्रिएट हो गया. Now there is one another operation here, that's deleting file. जो भी हम फाइल डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके लिए डिलीटिंग ऑप्शन जो है वो यूज करना पड़ता है. जैसे हमने अभी जो फोल्डर क्रिएट किया, हमें वो डिलीट करना है. उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट दिस फाइल और फोल्डर. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज मेन्यू में फिर से जाए. ओके, वहां पे एक डिलीट ऑप्शन होगा, आप उस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें. When we try to delete something, there appears a dialog box which is known as delete folder dialog box. So वहां पे हमारे से पूछा जाएगा, जो चॉइसेस होंगी कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर है कि आपको डिलीट करना है. दो ऑप्शंस होंगे, यस और नो. इफ यू आर श्योर देन क्लिक on yes. If you are not sure, then you can click no. But if you are sure, you can do yes. You can enter yes. Then this folder moving to the recycle bin. Note here, ये जो ये फाइल फोल्डर आपने डिलीट की थी वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ आपके कंप्यूटर की मेमोरी से, बट ये सिंपली रिसाइकल बिन में चला गया. एंड आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि गलती से हो गया ये डिलीट एंड यू वांट टू रिस्टोर दैट, व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू रिस्टोर दिस फ्रॉम द रिसाइकल बिन, क्योंकि ये अभी भी कंप्यूटर की मेमोरी में है। ओके, नाउ यू कैन सी आपने जो डिलीट किया था वो वापस आ गया आपके विंडो एक्सप्लोरर में। ओके, हियर you can see. Now there is one more operation here, that's moving files and folders. So simply we have one option, that's cut paste option here. Cut paste option is used to move files from one location to another. We can say from source to destination. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फाइल आपको मूव करनी है आपको वो फोल्डर या फाइल सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट सेम आप ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कट आएगा ऑप्शन एक। यू विल क्लिक ऑन द कट ऑप्शन एंड द थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, यू हैव टू सिलेक्ट डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पे आपको उसको मूव करना है, उस फोल्डर को या उस फाइल को। वो डेस्टिनेशन आपने चूज की, लाइक जो अभी हमने दूसरा फोल्डर चूज किया, अगर हम चाहें कि उसको वहाँ पे हम लाएं, so you have to select that folder, double click on that folder. Now here go to organize, choose the paste option and click that. जो अब ये फोल्डर था वो यहाँ से मूव हो गया। You will see कि फोल्डर अब विंडो एक्सप्लोरर में नहीं होगा, वो मूव हो गया होगा दूसरे फोल्डर में। Now another operation, that's copying. It's used to copy a file and paste it another location. Same steps like as moving. आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे फोल्डर बनाया, अगर हम इसी को कॉपी करना चाहे तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाते हैं, वहां पे हम कॉपी पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप कोई भी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं, लाइक डिस्क ड्राइव्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लैपटॉप पैन में आप देख सकते हैं। आपको जो भी लोकेशन चूज करनी है, जहां पर भी इसको आपको रखना है, कॉपी करना है, आप वहां पे इसको कॉपी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, आप फिर से ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाइए, वहां पर एक ऑप्शन होगा पेस्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे ये जो फोल्डर है वो कॉपी हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एक तो ये जो हमने कॉपी किया फोल्डर ये यहाँ पर भी है और जिस फोल्डर से हमने इसको उठाया था वो वहां पर भी होगा। नाउ यू कैन सी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मूविंग और कॉपीइंग में। मूविंग, जब हम मूव करते हैं किसी फाइल को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो जो उसका सोर्स होता है वो वहां से टोटली मूव हो जाता है, उस सोर्स में वो नहीं रहता, बल्कि आपने जो चूज की थी डेस्टिनेशन वहां पे आ जाता है। जबकि कॉपीइंग में क्या होता है, एक तो वो सोर्स में भी रहता है, दूसरा जो आपने डेस्टिनेशन चूज की थी वहां पर भी रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.